स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से झाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ झाइगोट इनटू द एम्ब्रियो इज नोन एज द एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब है क्या? झाइगोट का डेवलपमेंट होना इनटू द एम्ब्रियो, टू द एम्ब्रियो। दैट प्रोसेस इज नोन एज embryogenesis. That process is embryogenesis. So what happened in this process? First of all, there is a formation of endosperm, because the function of endosperm is to provide the nutrition for the development of embryo. इसीलिए सबसे पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने से पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, मतलब वहाँ पे जो भी न्यूट्रिशन है उसका फॉर्मेशन होगा और उस न्यूट्रिशन को लेके वहाँ पर डेवलपमेंट होगा हमारे एम्ब्रियो का। सो द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इज टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। In this process, the embryo is always formed at the micropillar end of the ovule. We know the structure of ovule. There are the two ends. First one is the micropillar end and the upper one is the chalazal end. So, there are some events which are under the post-fertilization event. The development of endosperm or the types of endosperm and the development of embryo are the processes under the post fertilization event. So here we see how the embryo is formed from the zygote. As we know, the zygote is the diploid structure where one male gamete fuses with the egg cell. This is haploid, this one is also haploid. So the haploid and haploid gamete forms a diploid gamete which is well known as a zygote. So in the fertilization process there is a formation of diploid zygote, and from this diploid zygote there is a formation of the embryo. So how this embryo is formed from the zygote? It under the process of embryogenesis. We will see it. So this is the zygote which is diploid in nature. The zygote undergoes the mitotic division and it forms a two cells. One is the larger cell. This is the larger cell which is present at the micropillar end, and another one is the smaller cell as compared to the basal one. It is known as the terminal cell which is present towards the chalazal end. Okay, so this is the micropillar end and the upper one is the chalazal end, and what we say that the embryo is formed from the micropillar end towards the chalazal end. So in this process, first what happened? The zygote is mitotically divided and forms the two unequal cells. The larger one cell is at the micropillar end. This is known as the basal cell, and the smaller cell is the terminal cell. Later on what happens? The basal cell undergoes a transverse division, and this transverse division forms a many cells, and these cells are well known as the suspensor cells. The basal cell get divided transversely. How? Transversely means this type of sections or this type of division is known as the transverse division. So the basal cells transversely divide and it forms a suspensor cell. These all are the suspensor cells. These cells are of 8 cells. The suspensor are 8 to 10 cells are the suspensor cells which are formed from the basal cell. Now here the terminal cell is get divided and forms the proembryonal quadrant. Why it is known as the quadrant? Because the cell is divided and it forms a 4 cells, and the 4 cells is known as the quadrant. Hence there is a formation of proembryonal quadrant and the suspensor cells. Now from these 8 suspensor cells, the last cell is get swollen by absorbing the nutritions. It gets swollen and it functions as the haustorial cell. So the last cell is well known as the haustorial cell because it is
swell as compared to the another suspensor cell. Next to this, the cell which is present the proembryonal quadrant and in between the suspensor cell, the above suspensor cell is get divide further. This cell is known as the hypocotyle cells. So these cells get divide and it forms the two different cells. These two different cells, and these are the suspensor cells, and this is our haustorial cell. The difference of this diagram and this diagram is that here we see the quadrant and here we see the octate form. Octate form what? Because why? Because there is the 8 cells are formed due to the division of mitotic. Mitotically it divide and it forms a 8 cells. Okay, then these 8 cells get divide periclinally. Periclinally means they are divided in such a way, means one cell is divided this way, second one is like this, third one, fourth, fifth, sixth, seventh and the 8th. Such a division is known as the periclinal division, and here the proembryonal quadrant get divide periclinally and it forms a such forms where the 16 cells are formed from the 8 or the from octate. The outermost cell of this proembryonal structure is known as the dermatogen. This is known as the dermatogen, and this dermatogen cell is get converted later on into the epidermis. What is epidermis? It is the outermost covering cell. This cell is formed from the dermatogen cells, which are the outermost cell of the proembryonal structure. Next to this, here we see that the 2 cells are converted or 2 cells are formed from the upper one. Then these 2 cells are further divided and it forms the 8 cell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and the 8. In such a way, these 2 cells get converted into the 8 cells and the further cells are as it is. Then this is the globular structure. This structure is known as the globular embryonic structure, which is the first different shape of structure. Then from the upper cells, there are the 2 parts, the lower one and the upper one. From the lower one part forms the hypocotyle, and the upper 8 cells forms the plumule and the cotyledonal structure. Then there are these 4 cells. These 4 cells forms a root cortex, which we see in the anatomical structure of root. There is a root cortex which is formed from the parenchymatous cells, or we can say it is of the sclerenchymatous cells. These root cortex is formed from these 4 cells. Next to these 4 cells, there are the another lower 4 cells. These another 4 cells get converted into the root cap or the root tip. We know this is the root structure. This is the root structure. In this root structure, there is a root cap is present. So this root cap is converted, or this root cap is formed from these 4 cells. Upper one is this. This is the root cortex. This root cortex is formed from the upper 4 red color cells, and after that this is the uppermost region, which is in this region we see the outermost covering. This is the outermost covering which is formed from the dermatogenous tissues or the dermatogen cells. So after the completion of these, there is a formation of plumule. What is plumule? Plumule is an initial point from which
द स्टेम इज इनिशिएट और द स्टेम इज फॉर्म। ये ऐसा पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट से स्टेम का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। मतलब हम लोग अभी कोई भी सीड लेंगे तो उस सीड में हम लोगों को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द प्लूम्यूल का पॉइंट मिलेगा, उसके बाद हम लोगों को रेडिकल का पॉइंट मिलेगा। रेडिकल से निकलती है रूट्स और प्लूम्यूल से जर्मिनेट होता है स्टेम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेम कहाँ से फॉर्म होगा? इन अपर मोस्ट 4 सेल्स से। उसके बाद नीचे के जो 4 सेल्स रहेंगे इतने यहाँ तक की, वहाँ से होगा रूट का फॉर्मेशन। लेटर ऑन दिस मास सेल गेट फर्दर डिवाइड एंड इट फॉर्म्स अ हार्ट शेप टिश्यूज और द हार्ट शेप स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो एंड फ्रॉम दिस हार्ट शेप स्ट्रक्चर देयर आर द हाफ ऑफ पोर्शन, lower portion forms a hypocotyle and the upper portion forms a epicotyle। EP मतलब above and hypo मतलब नीचे। तो इस तरह से जो हार्ट शेप्स टिश्यू रहेंगे, इन हार्ट शेप्स टिश्यू में से लोअर वाले फॉर्म करेंगे हाइपोकोटाइल को और अपर वाले फॉर्म करेंगे इपिकोटाइल्स को। उसके बाद ये सेल वैसे के वैसे ही अपना फंक्शन प्ले करेंगे अप टू द एंड। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो भी सस्पेंसर सेल है, ये सस्पेंसर सेल ऐसे के ऐसे क्यों है? क्योंकि जो फंक्शन होता है सस्पेंसर सेल का वो ये होता है कि ये क्या करता है, जो भी एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर होता है इस एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर को ऊपर पुश करता है। और ऊपर पुश क्यों करेगा वो? क्योंकि वहाँ पे होता है एंडोस्पर्म और एंडोस्पोर के जो भी न्यूट्रिशन है वो हमारे एम्ब्रियो को मिलने चाहिए, इसीलिए ये उसको ऊपर ले जाने का काम करता है। कौन से सेल? सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल का काम क्या है कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उस स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ ढकेलते जाना। और यहाँ पे होता है इस तरह से एंडोस्पोर और इस एंडोस्पर्म का क्या होता है? न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना। आफ्टर सम टाइम this heart shaped structure forms a 2 cotyledonous structure. This is the one cotyledon, this is second one cotyledon. This structure is get converted into the horse shaped structure. कैसे? ये जो भी हमारा सेल है जो हार्ट शेप का दिख रहा है, ये सेल फर्दर जो होता है वो इधर वाले साइड में फिर से क्या करता है? सेल का डिवीजन करता है और इधर साइड में सेल का डिवीजन करके वो इस शेप को इस तरह से यहाँ से ढकेलता है। नेक्स्ट में क्या होगा? जो यहाँ पर हार्ट शेप का स्ट्रक्चर है ये फर्दर डिवीजन करेगा और यहाँ पे फर्दर डिवीजन करके ये फॉर्म करेगा इस तरह के सेल्स। और ये सेल्स जो है वो शो करेंगे हम लोगों को हॉर्स टाइप ऑफ हॉर्स शू लाइक शेप। तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो भी हार्ट शेप है उसका जो सेल का डिवीजन है उनका सेल का डिवीजन का रेट जो रहेगा वो ज़्यादा इंक्रीज होगा। और रेट इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर जो भी है इनका मास इंक्रीज हुआ और वो दिखने लगा है हॉर्स शू शेप लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी एम्ब्रियो है ये एम्ब्रियो पूरी तरह से यहाँ के आउटर मोस्ट पार्ट में क्या है? एंडोस्पर्म है। अब ये पूरी तरह से जो एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म के एकदम ऊपरी हिस्से में जा रहा है और धीरे धीरे ये क्या करेगा? ये पूरा एंडोस्पर्म में पूरी तरह से मिक्सअप हो जाएगा और पूरा स्पेस जो है वो एम्ब्रियो ले लेगा और वहाँ का जो भी न्यूट्रिशन है वो सारा न्यूट्रिशन यूज करेगा एम्ब्रियो और वो होगा डेवलप। तो इस टाइप से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 2 कोटिलेडॉन्स फॉर्म होते हैं और ये 2 कोटिलेडॉन्स ही क्या करेंगे? 2 कोटिलेडॉन डाइकॉट सीड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, ये सपोज हमारी सीड है, इस सीड में होते हैं डाइकॉट। जब भी हम क्या करेंगे? पी वटाना लेंगे, ठीक है, उसको जब हम खोलते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को डाइकॉट स्ट्रक्चर मिलता है, सेमी स्पेरिकल स्ट्रक्चर मिलता है। और उन सेमी स्पेरिकल स्ट्रक्चर के बीच में यहाँ पर हम लोगों को एक पॉइंट दिखता है वाइटिश कलर का। वो वाइटिश कलर का पॉइंट मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है वो। और ये होगा उसका फर्स्ट कोटिलेडॉन, ये रहेगा उसका सेकेंड कोटिलेडॉन। तो इस टाइप से
एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियो डेवलप होता है इनटू द सीड, जो हम खाते भी हैं और जो हम क्या करेंगे ज़मीन में बोते हैं, सो दैट वहाँ से क्या हो सके, किसी भी दूसरे प्लांट का फॉर्मेशन हो सके। तो इस टाइप से ये पी समझो, ये पी हम लोग यूज़ करते हैं। उस पी में जो कोटिलेडॉन्स बने हैं वो कोटिलेडॉन्स मतलब हमारे ये दो स्ट्रक्चर, ये दो साइज के स्ट्रक्चर जो क्या फॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर कोटिलेडॉन्स फॉर्म कर रहे हैं। और ये जो एंडोस्पर्म है वो पूरा एम्ब्रियो ने खुद में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस टाइप से जो भी एम्ब्रियो होता है, जो भी ओवरी होती है, वो कन्वर्ट होती है इनटू द फ्रूट and the ovules get converted into the seed, and in this way the embryo and the endosperm is converted into the seed. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है, इस एम्ब्रियो से सीड का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और वो सीड का स्ट्रक्चर हम लोगों को डाइकॉट दिखता है या फिर मोनोकॉट दिखता है। जैसे कि हमने डाइकॉट का स्ट्रक्चर पढ़ा है, सेम इसी तरह से हमारा मोनोकॉट एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर भी रहता है। बस वहाँ पर एक डिफरेंस ऐसा होता है कि यहाँ पर जो दो कोटिलेडॉन्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो वहाँ पर दो कोटिलेडॉन्स का स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ हम लोगों को मिलेगा एक कोटिलेडॉन। इस तरह से वहाँ पर हम लोगों को एक कोटिलेडॉन मिलता है, और इस एक कोटिलेडॉन से मोनोकोटिलेडॉन सीड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सेम सेल का डिवीजन होगा, सेम सेल्स का फॉर्मेशन होता है। बस डिफरेंस आता है सिर्फ यहाँ पे, जहाँ पे दो कोटिलेडॉन्स फॉर्म हो रहे थे वहाँ पर अभी सिर्फ एक टाइप ऑफ कोटिलेडॉन्स का फॉर्मेशन होगा, और वहाँ पे सेल फॉर्म करेंगी मोनोकोटिलेडोनस सीड। तो इस तरह से एम्ब्रियो का होता है फॉर्मेशन। अब जब भी हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा तो हो सकता है कि वहाँ पर क्वेश्चन ये पूछे कि कौन सी स्टेज पहले आती है। तो अगर वहाँ पर हम लोगों को दिया है कि एम्ब्रियो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर की स्टेज पहले आती है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर पहले आता है, या फिर हॉर्स शू शेप का स्ट्रक्चर पहले आता है, तो हम लोगों को सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस में कैसे था, जाइगोट था, जाइगोट ने डिवीजन किया, बेसल जो भी सेल थे वो नीचे माइक्रोपिलर एंड की तरफ थे, चाला सेल एंड की तरफ टर्मिनल सेल्स थे। फर्दर जो भी बेसल सेल है वो डिवाइड होते हैं ट्रांसवर्सली, और वो फॉर्म करते हैं सस्पेंसर सेल, और जो भी टर्मिनल सेल्स रहेंगे वो फॉर्म करते हैं प्रो एम्ब्रियोनिक क्वाड्रेंट। प्रो एम्ब्रियोनिक क्वाड्रेंट जो है वो फर्दर डिवाइड होता है। फर्दर डिवाइड होने के बाद वो ऑक्टेट का फॉर्मेशन होता है। ऑक्टेट का फॉर्मेशन होने के बाद ये जो भी ऑक्टेट रहेगा, ये ऑक्टेट फर्दर पेरिकाइनल डिवीजन करेगा, और वो फॉर्म करेगा दिस टाइप ऑफ सेल। और यहाँ पे जो भी आउटर मोस्ट सेल हम लोग को दिखेंगे वो रहेंगे डर्मेटोजेन, जो फॉर्म करेंगे इपिडर्मिस। और यहाँ पर नीचे वाला जो सेल था, सस्पेंसर के सबसे ऊपर वाला जो सेल रहेगा वो भी खुद को डिवाइड करेगा, वो भी उसमें से सेल को फिर से डिवाइड करके वहाँ से रूट कॉर्टेक्स, रूट टिप, रूट कैप का फॉर्मेशन करेगा। और जो भी नीचे वाला सेल है वो नीचे वाला सेल खुद को स्वेल करेगा, और स्वेल करने के बाद उसे हम लोग बोलेंगे हॉस्टोरियल सेल। और हॉस्टोरियल सेल अप टू द लास्ट पॉइंट वैसे ही प्रेजेंट रहेगा, और सस्पेंसर सेल भी उसी तरह से प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि सस्पेंसर का काम होता है जो भी एम्ब्रियोनल सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उनको जो भी एंडोस्पर्म है बाहर में, उस एंडोस्पर्म के ऊपर लेके जाके वहाँ पर न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करना। एक बार जब पूरा हमारा एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, वो पूरी तरह से पूरी जगह को कैप्चर कर लेता है, तब जो भी सस्पेंसर सेल रहेंगे वो भी हम लोगों को एंडोस्पर्म के इसमें मिलते हैं, और इस टाइप से होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।